Good evening, students. Today we will solve pair of linear equation by substitution method. Okay, suppose I have two equation x minus 3y minus 7 equal to 0, and second equation is x minus y minus 5 equal to 0. So these are the two equations. Okay, now we have to solve these two equations by substitution method, or you can say we have to find out those value of x and y which satisfy both of these equations. So what we do, either from equation 1 or from equation 2, we will calculate the value of x or y and then substitute in another equation. कैसे करेंगे? जैसे suppose I am taking equation number 1. From equation 1, x minus 3y minus 7 equal to 0. From here, either I can calculate the value of x or y, but it is easy to find the value of x. ये ज़्यादा easy है. x equal to 3y plus 7. Okay, minus 3y और minus 7 को right hand side लेंगे हम. Now substitute this value of x in another equation 2. We have calculated the value of x from equation 1, and then we will substitute the value of that x in equation 2. So using in equation 2, this is your equation 2, x minus y minus 5 equal to 0. So in place of x, we will put the value of x equal to 3y plus 7. So here x equal to 3y plus 7 minus y minus 5 equal to 0. 3y minus y, 2y, 7 minus 5, 2 equal to 0. Then 2y is equal to minus 2, and then y is equal to minus 2 upon 2, 2 1 ja 2, y is equal to minus 1. So this is the value of y, equal to minus 1. Now we will put this value of y equal to minus 1 in, we can put this in any equation, in equation 1 or in equation 2, or you can put directly here. यहाँ भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये इक्वेशन 2 से ही बनाई, ये इक्वेशन 2 ही है. इक्वेशन 2 को हमने थोड़ा सा ट्रांसपोज करके ऐसे लिखा है. Now put y equal to minus 1 in x equal to 3y plus 7. So x equal to 3 into y की value minus 1 plus 7, x equal to minus 3 plus 7, y equal to 7 minus 3, 4. तो x equal to 4. So this is how you can use substitution method to find the value of x and y. हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ आपको. सपोज ये इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी. ओके, अभी हमने लास्ट में क्या किया, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की थी. अब मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ. सपोज मैं इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 2, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. अब यहाँ चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ चाहे y की निकाल लूँ. चलो मैं यहाँ से इस बार y की निकाल लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने x की यूज की थी. तो y माइनस 5 को उधर ले जाता हूँ. x माइनस 5 इज इक्वल टू y. अब मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली. x की भी निकाल सकते हो आप, जिस मर्जी की निकाल लो. अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल, लेकिन एक कौन सी यूज थी, इक्वेशन 2 थी ना. ये नहीं कि आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें इसको द्वारा, नो, क्योंकि हमने ये वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली. तो 2 में नहीं पुट करनी, किसमें पुट करनी है, 1 में. जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाले उसमें नहीं पुट करनी, अदर इक्वेशन में पुट करनी है. तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं यूजिंग इन 1.
x minus 3y minus 7 equal to 0. So what is the value of y? Y is x minus 5. So x minus 3 in place of y, x minus 5 minus 7 equal to 0. Open the bracket, minus 3 into x, minus 3x, minus minus plus 3 5s are 50, minus 7 equal to 0. X minus 3x is minus 2x, 50 minus 7, 8 equal to 0. Minus 2x equal to minus 8, minus minus cancel, x equal to 8 upon 2, 4. So x is equal to 4. आ गया वही पिछले क्वेश्चन वाला आंसर जो पिछले मेथड से सॉल्व किया था हमने. अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर लो. Now y is equal to x minus 5, y equal to x की वैल्यू क्या 4 है, 4 minus 5, y equal to minus 5. Now you got the same answer. Okay, so this is substitution method. Now I will discuss with you cross multiplication method. Okay, cross multiplication, this is very interesting method, cross multiplication method. ओके, इसको करने से पहले मैं आपको क्या बताऊं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. जैसे हम बोलते, जैसे हमने बोलते 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके, तो यहां पर हम ले लेंगे जैसे a1x b1y c1. तो ऐसे दूसरी इक्वेशन लेंगे a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके हैं. तो जो मैं बता रहा हूं वो आपने मेरा तरीका सीखना है. सो whenever you have to solve pair of linear equation by cross multiplication method, you have to convert those equation into this form. Suppose हमारे पास ये है x minus 3y equal to 5. ठीक है, तो आपने पहले इस 5 को इधर ले जाना, x minus 3y minus 5 equal to 0. इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हर इक्वेशन. मतलब आपके इक्वल टू यहाँ 0 आ जाना चाहिए. जैसे मान लो x इक्वल टू 4y प्लस 6 है, तो आप इस 4y प्लस 6 को इधर ले आओ, x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो let us start the cross multiplication method. Now I am taking the same question that I have solved. Okay, same question I am taking जो अभी हमने सॉल्व किया था. क्या था वो क्वेश्चन, x minus 3y minus 7 equal to 0 and x minus y minus 5 equal to 0. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो हम चाह रहे थे, ax plus by plus c equal to 0. अब ये मेथड थोड़ा सा आपने ध्यान समझना, ये थोड़ा बिल्कुल हटके है. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसे लिखना है x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये लिखना. कई बुक्स में माइनस वाई नहीं है, उनमें दूसरे तरीके से दिया हुआ. ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूं. पहला स्टेप क्या हो गया, x अपॉन, अभी ब्लैंक छोड़ देना है, इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ब्लैंक छोड़ देना, इक्वल टू 1 अपॉन ब्लैंक. अब आपने क्या करना है, x है ना, x के लिए आपने इस x वाले टर्म को हाइड कर देना है. फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. मतलब इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस करना है. और y वगैरह नहीं लेने, सिर्फ ओनली कोएफिशिएंट लेने हैं आपने, ओनली नंबर्स लेने हैं और साइन भी लेने हैं. जो भी साइन उनके साथ होगा वो साइन लेना है. ठीक है ना, क्या बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके प्रोडक्ट में से ये वाला प्रोडक्ट को माइनस करना. तो माइनस 3 इंटू माइनस 5 कितना होगा, 15. 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 15 माइनस तो लगानी है, इसके प्रोडक्ट में इसके प्रोडक्ट को माइनस करना. और
दिस इंटू दिस, यहां पर y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उसको हम क्या मानेंगे 1. इट मीन्स यहां पर क्या है -1 इंटू -7, -1 इंटू -7, 7 1 7, माइनस प्लस, तो +1 +7, सॉरी ये माइनस तो पहले ऑलरेडी है ना. अब हमने क्या करना, y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू के लिए करना है तो आपने अब y को हाइड कर देना, y को हाइड कर दो यहाँ पे, ये y को हाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, ये हमने y को ऐसे हाइड कर दिया. ठीक, अब आपने क्या करना है, y को हाइड करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट में से इसके क्रॉस प्रोडक्ट को माइनस करना. ये हाइड कर दिया हमने यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या 1 और यहाँ क्या है -5, 1 इंटू -5 -5, फिर माइनस तो लगाना है आपने, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ क्या है -7, 1 इंटू -7 -7, -7. दोबारा देखिए आप, मैंने कहा इसको हाइड कर देना आपने, इसको ये हाइड कर दिया आपने, जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसको हाइड कर देना आपने ऐसे. अब क्या करना, 1 इंटू -5 माइनस 1 इंटू -7 -7. क्लियर. अब आपने कांस्टेंट टर्म, ये क्या है 1 हमारी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म मतलब यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हाइड कर देना. ये हाइड कर दिया हमने. अब क्या बचा, इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस करना है. यहां क्या है 1 और यहां क्या है -1, 1 इंटू -1 -1 माइनस, अभी इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट, यहां क्या है 1 और यहां क्या है -3, -3 इंटू 1 -3. ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. x अपॉन 15 - 7 8 माइनस y अपॉन -5 माइनस प्लस 1 अपॉन -1 माइनस प्लस x अपॉन 8 माइनस y अपॉन 7 - 5 2 एंड 1 अपॉन 3 - 1 2. ये आ गया. अब आपने क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल पुट करना है और एक बार इसको इसके इक्वल पुट. दिस इक्वल, तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो एक बार दिस इक्वल टू दिस एंड एक बार दिस इक्वल टू दिस. तो ये लेते हम x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. एक बार दिस इक्वल टू दिस और एक बार दिस इक्वल टू दिस, और दूसरी बार माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ओके, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, x इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, x इक्वल टू 4 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस साइन उधर शिफ्ट कर दो, y इक्वल टू -1. तो मेथड इज डिफरेंट बट आंसर इज सेम. हियर यू अगेन गॉट द सेम आंसर, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1. So this is cross multiplication method. So this is all about substitution method. Now मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं, you have to solve these two questions by both by cross multiplication and by substitution. By cross multiplication and by substitution. दोनों मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना. This is the homework for you. और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको एक बार और ये क्वेश्चन जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिखा दूंगा. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको एक बार और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.